to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. ऋषि कपूर की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई. किस तरह बी टाउन ने मनाया शोक इरफान खान के निधन पर. इरफान खान के क्या हैं वो अननोन फैक्ट्स. ऋषि कपूर को कल लेट नाइट किया गया हॉस्पिटलाइज. सोर्सेस के मुताबिक ऋषि कपूर को HN रिलायंस फाउंडेशन में करवाया गया था लेट नाइट एडमिट, लेकिन अब आया है एक नया दुखद अपडेट, जिसके मुताबिक ऋषि कपूर की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई और इस वक्त उनकी वाइफ नीतू कपूर उनके साथ हॉस्पिटल में है मौजूद. ऋषि कपूर के हॉस्पिटलाइज होने की न्यूज को उनके भाई रणधीर कपूर ने कंफर्म कर दिया था. रणधीर कपूर का कहना था, ही इज हॉस्पिटलाइज्ड, नीतू इज बाय हिज साइड, ही इज नॉट वेल. ऋषि कपूर लास्ट ईयर ही सितंबर महीने में कैंसर का इलाज करवाकर न्यूयॉर्क से इंडिया लौटे थे. The actor was diagnosed with cancer in 2018 and underwent a marrow treatment and recovery that lasted 11 months and 11 days. All through, he had his wife Neetu Kapoor by his side. His son Ranbir Kapoor, along with his rumored girlfriend Alia, kept making regular visits to New York. ऋषि कपूर की तबीयत खराब होने पर ज्यादा अपडेट सामने नहीं आया था, लेकिन कहा जा रहा था कि उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है. ऋषि कपूर की वाइफ नीतू कपूर भी उन्हीं के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थीं और कहा जा रहा था कि रणबीर कपूर भी वहां पहुंच गए हैं. ऋषि कपूर की हालत को देखकर पूरी कपूर फैमिली परेशान थी, लेकिन उन्हें ये भरोसा था कि ऋषि कपूर विल फाइट बैक. टाइम्स नाउ के साथ लास्ट ईयर एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने डिटेल में बताया था कैंसर और इससे फाइट बैक करने की स्टोरी पर. You've been away from India for the last 1 year, and India's missed you. We are just about short of 1 year, couple of weeks short of 1 year. But by the time I get back, it will be nearly a year. It's a long vacation. It's a long vacation. I think it's beautiful you think about it that way, but how's the last 11 and a half months been? There were good days and there were bad days, and bad days were really bad. But then, you stay positive and then you just sail through, and then this is part of life. And you have to stay positive. I mean, that's what I learned in these 10 months. There's no way you can say, "Arey, kya ho raha hai? Theek ho jayega." And that's what kept us going. And we went, bad days we were home, and good days we went shopping. We went for lunches, we went to movies. There were so many people from India, and so it was just like, I feel it was just a long vacation. You thought about it like that, Rishi? See, when you say bad days, there's nothing I had some invasive surgery or I was in pain. Nothing of that sort. It's just that I have a kind of a little problem. लोगों को गुर्दे की शिकायत होती है. They have a problem with the liver, with their lungs, with the heart. I had a marrow problem. It was just one of those, and I had to get it rectified. So there is nothing such as a serious issue. The problem is that from one treatment to another treatment, there's a gap of 6 to 8 weeks, which you're doing nothing but, like she said, you're just having a long vacation, but you cannot travel. You can't fly. You cannot move around because you have long distances, long hours in flying. So I've got to be here. When did you really find out that there was a problem, and how did you react to it? I was shooting in Delhi. And my white blood cells were low, and when it was diagnosed, that was in Delhi. I was told to immediately. My son and our personal friends came over to Delhi to pick me up physically and put me in the next aircraft to go to New York. And I said, why can I not be treated here or whatever? The doctors, who were very, very kind and nice and forthcoming, they said that the best would be to take him immediately to New
York and have a look. It was diagnosed at a very early stage, thankfully. So we came here and I got to the doctors and ever since then I've been with them and they've been looking after me. My first reaction was obviously very bad. I was devastated. My kids were devastated. We didn't know what to do. But then we thought to ourselves, okay, this is it. We have to deal with it. And where he's concerned, he was in denial. For the first 4-5 months, he was not himself. And I think when you start accepting that this is your issue, then you're stronger. I feel he's much stronger for the past maybe 5-6 months. The earlier 4-5 months were really, I could see that he See, it's was like this, that, today, people fear, we have dramatized in films, we talk about cancer being a, very dreaded disease. Yes, it is sad. But today, it's all treatable as well. If you diagnose in the right stage, it can be dealt with. And people should But not the hope C word hope. psychologically. But किसी ने जिंदगी भर तो जीना है नहीं. Somebody has got to, So if it's very curable, the It's doctors are curable terrible, and terrific. And also you have to have family support. Yes, I've had great support from Neetu, great support from my elder sister Ritu, my niece Natasha. They were real, my real anchors. This is kept the me time. going. इससे पहले इरफान खान और अब ऋषि कपूर, इन दोनों के जाने से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सदमा लगा है। इरफान खान और ऋषि कपूर दोनों ने ही साथ काम किया था इन द फिल्म D-Day। इन दोनों ही लेजेंडरी एक्टर्स ने कोइंसिडेंटली फाइट की थी अ वॉर अगेंस्ट कैंसर और दोनों को ही 2018 में सेपरेटली डायग्नोज किया गया था। और अब दोनों ही एक्टर्स ने अपने फैंस और फैमिली को शॉक में छोड़ दिया है। ऋषि कपूर की डॉटर रिद्धिमा कपूर सहानी फिलहाल दिल्ली में है। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन से लेकर फरहान अख्तर, बॉलीवुड के हर एक सेलिब्रिटी ने नम आंखों के साथ किया अपने फेवरेट एक्टर इरफान खान को याद। हर एक सेलिब्रिटी के इमोशनल मैसेज को देखकर साफ है कि वो इरफान खान को किस हद तक करेंगे मिस। अमिताभ बच्चन wrote, Just getting news of the passing of Irfan Khan. This is a most disturbing and sad news. An incredible talent, a gracious colleague, a prolific contributor to the world of cinema, left us too soon, creating a huge vacuum. Prayers and duas. Shahrukh Khan ne likha, My friend, inspiration, and the greatest actor of our times. Allah bless your soul, Irfan Bhai. We'll miss you as much as cherish the fact that you were part of our lives. पैमाना कहे है कोई, मैं खाना कहे है, दुनिया तेरी आंखों को भी क्या क्या ना कहे है. Love you. लता मंगेशकर tweeted, बहुत गुणी अभिनेता इरफान खान जी के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। Karan Johar expressed his grief by tweeting, Thank you for those indelible movie memories. Thank you for raising the bar as an artist. Thank you for enriching our cinema. We will miss you terribly, Irfan, but will always be immensely grateful for your presence in our lives, our cinema. We salute you. Salman Khan tweeted, Big loss to the film industry, his fans, all of us, and especially his family. My heart goes out to his family. May God give them strength. Rest in peace, brother. You shall always be missed in all our hearts. Priyanka Chopra shared a picture with Irfan Khan and wrote,
The charisma you brought to everything you did was pure magic. Your talent forged the way for so many in so many avenues. You inspired so many of us. Irfan Khan, you will truly be missed. Condolences to the family. Ajay Devgan wrote, heartbroken to hear about Irfan's untimely demise. It's an irreparable loss for Indian cinema. Deepest condolences to his wife and sons. Rest in peace, Irfan. Farhan Akhtar wrote, Irfan Khan was truly a one-of-a-kind actor, and the magic he brought to the screen will be sorely missed. Rest in peace. #Gone too soon. Ritesh Deshmukh tweeted, Our loss, heaven's gain. Irfan Khan, rest in peace. Thank you for all the magic you weaved on celluloid. Condolences to the family and loved ones. चित्रांगदा सिंह expressed, जिंदगी पे तेरा मेरा किसी का ना जोर है. हम सोचते हैं कुछ, वो साली सोचती कुछ और है. I would sit and watch his takes in awe during ये साली जिंदगी shoot. We have lost the finest. Such a loss. Rest in peace, Irfan Khan. Bhumi Pednekar wrote, So heartbroken on the demise of Irfan Khan, sir. We are shocked and just sad. My condolences to the family. You will live on forever in our hearts, sir. Thank you for entertaining us and giving us such powerful performances. You were an institution and an inspirational force. Rest in peace. Sonam Kapoor wrote, Rest in peace, Irfan. You have no idea what your kindness meant to me at a time I was at my least confident. My condolences to your family and loved ones. Tiger Shroff wrote, Saddened by the untimely passing of Irfan Khan, sir. Condolences to the family. Gone too soon. इरफान खान भले हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जैसे बेहतरीन एक्टर की यादें हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगी। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जो शायद अपने फेवरेट एक्टर के बारे में आप ना जानते हो। Birth in a Rajasthani royal family. इरफान खान का जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था। His father was the late Jagirdar Khan from the village Khajuria near the Tonk district. His mother Begum Khan belonged to the Tonk Hakim family. लेकिन इरफान खान ने कभी अपने रॉयल हेरिटेज को फ्लॉन्ट नहीं किया। Irfan's real name is Sahabzade Irfan Ali Khan. Well, you heard it right. इरफान खान का पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान है, लेकिन उन्होंने इसे शॉर्ट करके हमेशा इरफान खान की तरह ही यूज किया। इरफान खान was not interested in films. इरफान खान बॉलीवुड में अपना करियर नहीं बनाना चाहते थे। उनका इंटरेस्ट हमेशा से क्रिकेट में ज्यादा था, लेकिन उनके पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे। और जब इरफान को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्कॉलरशिप मिली, फिर उन्होंने फिल्म्स का रुख किया। फर्स्ट जॉब ऑफ इरफान इन मुंबई। इरफान खान का सफर हमेशा से रोजी नहीं था। जब इरफान पहली बार मुंबई आए थे तो उन्होंने एयर कंडीशन रिपेयर करने का काम शुरू किया, और कहा जाता है कि इरफान खान को पहली बार राजेश खन्ना का एयर कंडीशन रिपेयर करने का काम मिला था। डेब्यू इन फिल्म्स इन हिज फाइनल ईयर एट NSD। इरफान खान की पहली फिल्म सलाम बॉम्बे थी। ये बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उस वक्त इरफान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फाइनल ईयर में थे।
यही नहीं, फिल्म में उनके रोल को चॉप कर दिया गया था क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा थी। इरफान मैरिड हिज फेलो NSD स्टूडेंट सुतापा सिकदर। इरफान खान की वाइफ सुतापा सिकदर है और उनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सुतापा से इरफान खान की मुलाकात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुई थी और उनकी लव स्टोरी है काफी पुरानी। Wanted to give up acting at one point of time. इरफान एक वक्त पर अपने फिल्म करियर को क्विट करना चाहते थे क्योंकि ज्यादातर टेलीविजन शोज में काम करके इरफान खान को मजा नहीं आ रहा था। लेकिन फिर आसिफ कपाड़िया की फिल्म द वॉरियर करने के बाद इरफान खान फिर से एक्टिंग की तरफ वापस आ गए। फर्स्ट कमर्शियल फिल्म रोग इन द ईयर 2005। वैसे तो इरफान खान ने अपने करियर की शुरुआत 1988 में ही कर ली थी, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में अपनी फर्स्ट कमर्शियल फिल्म रोग 2005 में मिली, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। The story of adding extra R in the name. इरफान खान के नेम में एक्स्ट्रा आर को देखकर यही कहा जाता है कि इसकी वजह न्यूमरोलॉजी है, लेकिन उनके करीबियों का मानना था कि इरफान ने ये एक्स्ट्रा आर इसीलिए रखा था क्योंकि उन्हें इसका साउंड पसंद था। Refused a movie to Christopher Nolan in 2014. क्रिस्टोफर नोलन की हिट फिल्म इंटरस्टेलर में काम करने के ऑफर को इरफान ने इनकार कर दिया था क्योंकि इरफान खान ने अपने डेट्स उस वक्त फिल्म्स डी-डे और लंच बॉक्स को दे दिए थे और वो अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स को डिच करके हॉलीवुड फिल्म नहीं करना चाहते थे। इरफान खान्स यूनिक विश फॉर मदर। इरफान खान सब कुछ अपनी लाइफ में हटकर करना चाहते थे और उनकी विश थी कि वो अपनी माँ को गिफ्ट करें पैसों से भरा सूटकेस जस्ट लाइक इन अ फिल्म, लेकिन उनकी ये आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। When Irfan Khan got in trouble because of his name. Just like शाहरुख खान, इरफान खान को भी अपने नाम की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा क्योंकि उस वक्त अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इरफान खान नाम का एक टेररिस्ट था। इरफान खान की लाइफ किसी फिल्मी सफर से कम नहीं थी और ये फैक्ट्स पूरी तरह से दिखाते हैं कि he lived his life on his own terms and we just want to say we will miss him dearly क्योंकि बॉलीवुड में उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। फिल्म मकबूल में मियां मकबूल का हार्ड हिटिंग किरदार हो या फिर लंच बॉक्स में दिखा आम आदमी का अवतार, हिंदी मीडियम का एक व्यापारी हो या फिर पान सिंह तोमर में डाकू का रोल, इरफान खान को बॉलीवुड में हमेशा उनके इन ना भुला पाने वाले किरदारों के लिए याद किया जाएगा। आइए नजर डालते हैं इरफान के बेहतरीन करियर पर और बात करते हैं उनकी 10 ऐसी फिल्मों की जिन्होंने फैंस के दिमाग पर अपनी छाप छोड़ी है। मकबूल, रिलीज ईयर 2003। फिल्म मकबूल में मियां मकबूल का ही वो किरदार था जिसने रातों रात इरफान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। पंकज कपूर यानी अब्बा जी और निम्मी यानी तब्बू के साथ मिलकर इरफान ने फैंस के दिलों को जीत लिया और इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। स्लमडॉग मिलियनेयर, रिलीज ईयर 2008। ऑस्कर विनिंग इस फिल्म में इरफान खान का रोल भले ही छोटा था, लेकिन अपने पुलिस वाले के रोल से डायरेक्टर डैनी बॉयल को इरफान ने खूब इम्प्रेस किया था। लाइफ ऑफ पाई, रिलीज ईयर 2012।
In Life of Pi, the actor essayed the role of an adult version of the protagonist Pi Patel. इस अवार्ड विनिंग फिल्म में इरफान ने एक नरेटर का रोल प्ले किया क्योंकि ये फिल्म फ्लैशबैक पर बेस्ड थी। पान सिंह तोमर, रिलीज ईयर 2012। पान सिंह तोमर में इरफान का रोल एज एन एथलीट और फिर उनके डाकू बनने का सफर दोनों फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। अपने इस रोल में इरफान इतने रियलिस्टिक लगे थे कि क्रिटिक्स उनकी तारीफ करते नहीं थके थे। द लंच बॉक्स, रिलीज ईयर 2013। He again stole the heart of the audience with Lunchbox, a simple movie in which he played Sergeant Fernandez, a widowed accountant who gets into an episolitary affair with a housewife. Piku, release year 2015. दीपिका पादुकोण और बिग बी के साथ मिलकर इरफान खान ने इस फिल्म से ऐसा समा बांधा था कि आज तक ये फिल्म फैंस की फेवरेट है। एक टैक्सी कंपनी के ओनर के रोल में इरफान खान ने इस कदर जान डाल दी थी कि फैंस को उनसे प्यार हो गया। बिग बी और दीपिका के साथ उनकी केमिस्ट्री भी फिल्म में काफी जानदार तरीके से नजर आई। हिंदी मीडियम, रिलीज ईयर 2017। फिल्म हिंदी मीडियम में चांदनी चौक के एक व्यापारी के रोल में इस कदर इरफान ने जान डाल दी कि ही लुक्ड लाइक नेक्स्ट डोर बिजनेसमैन। इरफान की कॉमिक टाइमिंग से लेकर उनके इमोशनल पंचेस ने इस फिल्म को साल की वन ऑफ द सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बना दिया। अंग्रेजी मीडियम, रिलीज ईयर 2020। इरफान खान ने इस फिल्म की शूटिंग को कैंसर डायग्नोज होने के बाद पूरा किया। इरफान ने उस वक्त इस फिल्म की शूटिंग की थी जब वो रिकवरी के फेज में थे और फैंस को पूरा यकीन था कि एक फाइटर की तरह इरफान वापस आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और ये फिल्म इरफान की आखिरी रिलीज फिल्म बन गई। Coming up on the show, इरफान खान जिससे भी मिलते थे वो हमेशा के लिए उनके करीबी बन जाते थे। इरफान खान जिससे भी मिलते थे वो हमेशा के लिए उनके करीबी बन जाते थे और अपने आखिरी दिनों में इरफान खान ने जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया वो थी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की टीम। इस फिल्म की पूरी टीम फिलहाल सदमे में है। वो यकीन नहीं कर पा रहे कि इरफान उनके बीच नहीं रहे। इस फिल्म की प्रोड्यूसर दिनेश विजन इरफान खान के कितने करीब थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उन्होंने प्रोड्यूसर होने के बावजूद मेक श्योर किया कि हर दिन वो फिल्म के सेट पर इरफान खान के साथ मौजूद रहें और उनका पूरा ख्याल रखें। यही नहीं, फिल्म की रिलीज के दौरान दिनेश विजन का कहना था कि इस फिल्म के कलेक्शन या हिट फ्लॉप से ज्यादा उनके लिए खुशी की बात है कि वो इरफान खान के साथ फिर से काम कर पाए। और अब जबकि इरफान खान का निधन हो गया है, दिनेश विजन ने एक इमोशनल नोट लिखा है। We are thankful for experiencing Irfan's resilience and spirit. We are thankful for being allowed to witness his love and passion for everything around him. So yes, all I can say is thank you to him for letting us be a part of his journey. There is no one like Irfan and I'm going to miss him very much. Rest in peace, my friend. यही नहीं, दिनेश विजन ने कहा है कि वो हमेशा इरफान खान की फैमिली के साथ रहेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। I know that he could spread his wings and soar only because he had his wife Sutupa as his rock. My heartfelt condolences to her and his sons. We are always there for them and I know that they know this. दिनेश विजन के ये वर्ड्स काफी टचिंग हैं। इस मुश्किल की घड़ी में इरफान के परिवार को दोस्तों की सबसे ज्यादा जरूरत है और दिनेश ने कहा है वो हमेशा उनकी फैमिली के साथ खड़े रहेंगे।